Yeah, so we are doing exercise 25B ka question number 8. Question says 2 dice are rolled together. Find the probability of getting so 2 dice are rolled together. Find the probability of getting a total of at least 10. तो जो डाइस को अगर हम लोग फेंकेंगे तो पहले इसका जो सैंपल स्पेस है इसको अगर लिख लें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6. Then we have 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6. We have 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 6. अब ये देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन में टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 का मतलब 10 या 10 से ज्यादा, राइट? तो 6 4 5 5 4 6 5 6 और 6 5 और 6 6 ये सारे होंगे जो एटलीस्ट 10 होंगे। तो कितने हो गए यहाँ पे 3 + 2 + 1 5 + 1 6, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 10 is equal to 6/36, which is equal to 1/6. Second part है आपका a multiple of 2 on one die and an odd number on the other. Multiple of 2 and odd number. तो देखो ये वाले सारे इसको सबको नंबर को ये कर लेते हैं मल्टीपल ऑफ 2 on one and odd number on other. तो सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं देन आई ये 1 2 हो जाएगा 1 4 हो जाएगा 1 6 हो जाएगा उसके बाद ये 2 3 हो गया 2 5 हो गया और ये 2 1 and then we have 3 2 3 4 3 6 4 1 4 3 4 5 5 2 5 4 5 6 6 1 6 3 and 6 5. So this is 18 in number. So probability of the event is 18/36, which is 1/. So exercise 25B, question number 8. First part is 1/6, second part is 1/6. Clear, बच्चों?
क्लियर है बच्चों? यस Yes. वीर कैमरा ऑन करो, मंजू कैमरा ऑन करो। लिख लिया सबने? Now we'll do questions. So we'll start with question number 29 in exercise 25B. So question number 29 in exercise 25B, 25C, I'm sorry. Excuse me. So we'll start from 29 and try to finish up to 38 today. बाकी जो शुरू वाले हैं, जो इजी वाले हैं, वो आप लोग कीजिएगा 2 दिन में. you'll do. Now, so 29 question, cards marked with numbers 1, 2, 3, 4, 20 are well shuffled and a card is drawn at random. What is the probability that the number on the card is a prime number? तो 1 से लेके 20 तक तो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा? S, सारे नंबर बिटवीन 1 and 20. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Now प्राइम नंबर, तो पहला जो है, लेट even with the event of getting a prime number. तो जो इवन में जो एलिमेंट्स होंगे, ये कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? देखो अंडरलाइन करते जाते हैं. 2, 3, 5, 7, राइट. उसके बाद 11, 13, 17 and 19, right? So these are the prime numbers. So write it down. और हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे? 1 is neither prime nor even, neither prime nor composite. Okay, 1 is not a prime number. So smallest prime number is 2. That's the only even prime number which we have. So 2, 3, 5, 7. Then we have 11, 13, and then we have 17 and 19. कितने हो गए? 3, 3, 6 और 2, 8. 8 prime numbers हम लोग को. Right. So now probability that card drawn has a prime number on it, probability of event even will be equal to 8 upon 20. So 8 upon 20, 4 2s and 4 5s are 2 upon 5. So first वाला जो event है, first वाला जो question है, उसका probability क्या हो जाएगा? 2 upon 5 हो जाएगा. ठीक है? मन्नू आ गया समझ? सेकेंड पार्ट हम लोग को कह रहा है डिविजिबल बाय 3. डिविजिबल बाय 3 वाले को अगर हम लोग सर्कल कर लें, 3, 6, 9, 12, 15 and 18, है ना? तो 6 numbers are there. Let E2 be the event of getting a number divisible by 3.
So we'll have 3, 6, 9, 12, 15, 18. And probability of event E2 is equal to 6 upon 20, 3 upon 10. A perfect square, परफेक्ट स्क्वायर अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स से उसको हम लोग रेड से मार्क कर लेते हैं. सो परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 9 है और 16. 3 परफेक्ट स्क्वायर. E3 be the event of occurrence of perfect square. Probability of event E3 is equal to 3 upon. सर 1 भी तो 1 भी, परफेक्ट हाँ 1 स्क्वायर भी, है. 1 भी, हाँ sorry बच्चे, 1 भी, I'm sorry. So this is 4 upon 20. 1 by 5. So E3 को अगर हम लोग लिखेंगे 1, 4, 9 और 6. क्लियर है? Yes. लिख लिया सबने? Now 30th question is, offices in Delhi are open for 5 days in week, that is Monday to Friday. Now 2 employees of an office remain absent for 1 day in same particular week. Find the probability that they remain absent on the same day. ठीक है? तो अब देखो सेम डे में दोनों को अगर एब्सेंट होना है, राइट, सो offices in Delhi are open for 5 days in a week, Monday to Friday. 2 employees of an office remain absent for 1 day in same particular week. Find the probability that they remain absent on the same day. तो अब हम लोग अभी देखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम लोग कर रहे हैं. तो देखो एब्सेंट, अगर सैंपल स्पेस देखोगे ना, तो सैंपल स्पेस मान लो मंडे दोनों मंडे एब्सेंट होता है. मंडे ट्यूसडे है, मंडे वेडनेसडे है, मंडे थर्सडे है, थर्सडे को TH लिख लेते हैं, मंडे फ्राइडे है, ये हो गया. ऐसे ऐसे ये पहला वाला ट्यूसडे और फिर दूसरा मंडे, ऐसे करके तुम जैसे ये हम लोग वो जो ये जो पेयर निकालते थे ना, डाइस में जैसे पेयर निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे हम लोग पेयर निकालें. राइट, तो मंडे के साथ मंडे हो सकता है, मंडे के साथ ट्यूसडे, मंडे के साथ वेडनेसडे, मंडे के साथ थर्सडे और मंडे के साथ फ्राइडे. फिर ट्यूसडे के साथ शुरू करेंगे, ट्यूसडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे एंड ट्यूसडे फ्राइडे. तो इस तरह से हमारा चलेगा, है ना. वेडनेसडे मंडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे Thursday and Wednesday Friday. And then we have Thursday Monday,
Thursday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday. Then we have Friday, Monday, Friday, Tuesday, Friday, Wednesday, Friday, Thursday, and Friday. So these are the sample space. अब कह रहा है कि find the probability that remains absent on same day. Same day मतलब Monday, Tuesday, दोनों Wednesday को absent है, Thursday को absent है, Friday को absent है. तो फर्स्ट वाले का अगर प्रोबेबिलिटी इवेंट इवन लेते हैं एब्सेंट ऑन सेम डे, तो जो इवेंट है इसमें एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, मंडे वाला हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. अब फर्स्ट वाले का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिस इज इक्वल टू 5/25. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 25 है, फेवरेबल आउटकम्स 5 है, 1/5. कंसेक्यूटिव डे है ना, कंसेक्यूटिव डे के लिए अब हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं दूसरे हिस्से. तो कंसेक्यूटिव डे देखो क्या बन रहा है, मंडे ट्यूसडे का एक बन रहा है, ठीक है. उसके बाद ट्यूसडे और मंडे का बन रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे का बन रहा है, राइट. और उसके बाद वेडनेसडे ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे का बन रहा है कंसेक्यूटिव डे. और फिर थर्सडे और वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे का बन रहा है और फ्राइडे थर्सडे का. सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स जब वो कंसेक्यूटिव डे में एब्सेंट है, राइट. सो इट शुड बी जस्ट वन आफ्टर द अदर. सो नंबर ऑफ blue ones you will see that 3, 4, 7, 1, 8 8 आ रहा है. So E2 is an event of absent on consecutive days. Probability of event E2 will be equal to 8/. थर्ड है डिफरेंट डेज होने चाहिए, सेम डेज नहीं होने चाहिए. मतलब ये 5 को छोड़ के बाकी सब हो जाए, है ना. तो प्रोबेबिलिटी दैट दे आर एब्सेंट ऑन डिफरेंट डेज, probability that they are absent on different days. This is complementary event of absent on same days, right? So we'll write probability absent on different days is 1 minus probability absent on same days. Absent on same days. So this is 1 minus 1/5, which is equal to 4/5. या तुम काउंट करके 20/25 भी निकाल सकते. फर्स्ट इवेंट में जो एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वहां पे एब्सेंट ऑन डिफरेंट डेज आएगा. एब्सेंट ऑन डिफरेंट डेज के लिए 20/25 करोगे, वो भी 4/5 ही.
लिख लिया बच्चों? हाँ जी। आकांक्ष लिख लिया? Yes. 31st क्वेश्चन क्या है? A box contains some black balls and 30 white balls. Some black balls and 30 white balls. If the probability of drawing a black ball is 2/5 of the white ball, find the number of black balls in the box. So इसमें assume कर लो क्योंकि दिया हुआ नहीं है. Let the number of black balls be x. So total number of balls is equal to x plus 30 हो जाएगा, है ना? गिवन है यहाँ पे व्हाइट बॉल्स कितने हैं? व्हाइट बॉल्स इज इक्वल टू 30. अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज 2/5 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ व्हाइट बॉल, है ना? ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? x बाय x प्लस 30 हो जाएगा. जितने ब्लैक बॉल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स is equal to 2/5 of probability of white balls. Probability of white balls क्या हो जाएगा? Number of white balls by total number of balls. Is it clear to everyone? Yes. अब क्या करना है हम लोग को? ये देखो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 30 और x प्लस 30 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, राइट? तो अब हमें क्या मिल जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 60, या सीधे x का वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं. This is 12. So the value of x is equal to 12. So number of black balls in the box is 12. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया आप लोगों ने? Yes. Yes. 30 सेकेंड. हाँ जी. सर मैं 25B को सबमिट करने की कोशिश करी थी LMQ में, लेकिन it was saying that the size of the file was too big. What size did you choose? What was the size of the file? I'll just check in एक मिनट. उसको कंप्रेस कर दो अनवी. Okay, I'll do that. उसको वेब, ये इस पे इंटरनेट पे कोई भी साइट ढूंढना जहाँ पे कंप्रेस कर सकते हैं PDF, क्योंकि हम लोगों ने 2 MB से 4 MB का रखा है. 2 MB कुछ में है, किसी में 4 MB का है. उससे ज्यादा बड़ा फाइल तो बहुत बड़ा फाइल होगा. Compress करके देना. कंप्रेस करके आप I still emailed it to you because हो नहीं रहा you था. have mailed it to me, I saw that. But जनरली क्या है, वहाँ पे करोगे तो वहाँ पे हम लोग के पास ट्रैक रहेगा कि क्या किया है क्या. I'll try. आगे से बस उसको कंप्रेस करना. वैसे मैंने सबका साइज 4 MB कर दिया, 2 MB से 4 MB कर. बट पीछे वालों का नहीं है, तो इसलिए पीछे वाले कंप्रेस कर देते हैं. और सबका डेट भी अब हम एक हफ्ते का डाल दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को है कि आज नहीं किया कल करना है, तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन रहेगा. अच्छा, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, all cards whose numbers are multiples of 3 are removed. A card is not drawn at random. What is the probability that the card drawn is a face card? देखो, मल्टीपल्स ऑफ 3 हटा रहे हो तो किसको किसको हटाओगे? 3 नंबर और 9 नंबर कार्ड को हटाओगे. यही तो मल्टीपल ऑफ कार्ड्स है, मल्टीपल ऑफ 3. और हर सूट में मतलब 4 सूट्स होते हैं ना बेसिकली. हाँ 6. हाँ बेटा, Sir, 6 भी तो है. नहीं सुनाई पड़ा. Sir, 6 भी तो है. हाँ 6 भी हो, मल्टीपल है. 3, 6 और 9 हो गया.
और इसको हम लोग हटा रहे हैं। चार ऐसे ऐसे सूट्स हैं बेसिकली, अगर आप देखोगे तो स्पेड हो गया, क्लब हो गया, आर्ट्स है और डायमंड। अब इन सभी में से ये 369 वाले कार्ड हटा दिए तो टोटल कितने थे? इसमें 13 था, इसमें 13 था, इसमें 13 था, इसमें 13। अब इसमें से 3 कार्ड हटा दिए, बचे 10। इसमें भी 10 बचा, इसमें भी 10 बचा और इसमें 10 बचा, जिसमें से उस 10 में से 7 नंबर्ड कार्ड है और 3 फेस कार्ड। यहाँ 7+3, यहाँ पे भी 7+3, 7+3, क्योंकि जो तुमने रिमूव किया है वो सारे क्या है? नंबर्ड कार्ड्स तुमने रिमूव किए। क्लियर है? सबको समझ में आ गया ये? अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। तो अब टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, number of face cards is equal to 3 into 4, 12, and total number of cards will be equal to 13 में से, सॉरी 52 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर लो 3 into 4, so you will get 40 cards. So probability of face card, ये जो नया कार्ड्स हैं जिसमें से आपने रिमूव कर दिए हैं, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेस कार्ड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड। 4 3s are 12, 4 10s are 40, सो ये क्या हो गया? 3/10। सेकेंड एंड इवन नंबर्ड रेड कार्ड्स। सो अब देखो, इवन नंबर्ड रेड कार्ड्स है। रेड कार्ड हार्ट और डायमंड है, इसमें से 369 तुमने हटा दिए हैं, तो इवन नंबर्ड कार्ड क्या क्या बचेगा? 2 4 8 और 10। यही 4 कार्ड्स होंगे इवन नंबर्ड कार्ड, है ना बच्चों? Yes. Yes. सो दीज आर इवन नंबर्ड कार्ड्स, राइट? अब इवन नंबर्ड रेड कार्ड, ये देखो 4 है, सो टोटल इवन नंबर्ड रेड कार्ड्स विल बी 4 into 2, 8 हो जाएगा, है ना? क्योंकि हार्ट और डायमंड दोनों रेड है, दीज बोथ आर रेड। सो इवन नंबर्ड red cards is equal to 4 into 2, that is 8 in number. So probability that it is even numbered red card is equal to 8/40, that is 1/5. Clear है बच्चों? Yes, sir. Clear? Yes. 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 अब ये क्वेश्चन खुद से करो। मैं सबके कॉपी में देखूंगा क्या किया है तुमने।
You can show it to me once you have done. सुनित सर Yes, Peter. सर चेक कर दीजिए पहले वाले का क्या आया? सर पहले वाले का आया 1/6 पहले वाले का नहीं. What is the probability of getting a positive integer? तो 3 इंटीजर है ना पॉजिटिव, 1 2 3, 3/6 हो जाएगा. थर्ड का फर्स्ट 1/2. आगे समझ साथ. There are 3 Yes, sir. positives है ना. यस आकांक्ष 1/2 आया. क्या क्या आया आंसर आकांक्ष तुम्हारे? Sir, 1/2, 5/6 and 1/6. हाँ ये सही है. सर बाकी सब मेरे भी सही हैं हाँ साथ ठीक है. बाकी लोग का क्या है? यस. पहले वाले का हाफ आया, दूसरे वाले का 5/6 और तीसरा वाला कर रहा हूँ. हाँ मतलब जहाँ किया है वो दिखाना. कबीर हाँ लेके आओ थोड़ा और पास लेके. सर तो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछ रहे हैं वो इन 6 नंबर्स के बीच हाँ में पूछ स्मॉलेस्ट रहे हैं. इंटीजर इसी तीनों में ना -3 स्मॉलेस्ट माइनस. अच्छा ओके. तो 1/6 हो जाएगा. ठीक है कबीर देख लिया मैंने. राइटिंग थोड़ा बड़ा लिख, अच्छे से लिखा था. अध्ययन ये बैकग्राउंड की वजह से नहीं दिखा था, ब्लर की वजह से. ठीक है तुम्हारा क्या क्या आया अध्ययन आंसर? म्यूट पे हो बेटा, म्यूट पे हो. अध्ययन म्यूट पे हो, नहीं सुनाई पड़ा. सॉरी सर. हाँ. सर 1/3, 5/6 और -3. नहीं 1/2, 5/6 सॉरी सर 1/2, 1/6 होगा. 3/6. ठीक है. दृष्टि डन बेटा? दिखाओ. दिखाओ दिखाओ. हाँ दृष्टि एनवी दोनों लोग दिखाओ. ठीक है दोनों का सही है. दृष्टि देख ले. चलो गुड. सो फटाफट मैं बता दूं इसमें भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर. तो पॉजिटिव 1 2 और 3 थे. तो फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 3/6 दैट इज 1/2 हो जाएगा. सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटीजर ग्रेटर देन -3. तो ये सारे इंटीजर ग्रेटर देन -3 है ना. ये सारे इंटीजर ग्रेटर देन -3. ग्रेटर देन -3 5/6 हो जाएगा. तीसरा द स्मॉलेस्ट इंटीजर -3 है. प्रोबेबिलिटी स्मॉलेस्ट इंटीजर तो 1 हो गया. देयर इज ओनली वन स्मॉलेस्ट इंटीजर एंड 1/6 टोटल नंबर ऑफ. A bag contains 5 white balls, 6 red balls, and 9 green balls. A ball is drawn at random from the ball bag. Find the probability that the ball drawn is a green ball. So probability of green ball
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने ग्रीन बॉल हैं? 9 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल, 9 + 6 15 + 5 20, तो 9/20 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9 हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 20 है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल 9/20 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट, व्हाइट और रेड बॉल, व्हाइट और रेड, और मतलब एडिशन हो जाता है, यूनियन हो गया दोनों का, राइट। तो व्हाइट और रेड 6 + 5, व्हाइट और रेड कितने हो जाएंगे? 6 + 5, व्हाइट और रेड is 6 + 5/20. So this is 11/20. Neither a green ball nor a white ball, ना तो ग्रीन होगा ना ही व्हाइट होगा, तो बच क्या गया? रेड बच गया, राइट। तो वो क्या हो जाएगा? 6/20 हो जाएगा। So P neither green nor white, which is same as probability of red balls. So this is 6/20 और 3/10। क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है? Yes, sir. आई होप सबने लिख लिया। यस सर। 35th वाला खुद से कीजिए, करके दिखाइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 35, प्लीज डू ऑन योर ओन एंड शो इट। तो वो 13 to 40 है ना, 11 12 13 14 15 till 40। क्या बच्चों? हाँ, 11 से लेके 40 तक सारे, 40 और 11 दोनों इंक्लूड। So done. दिखाओ बच्चे। क्या आंसर आया है? फिर फर्स्ट पार्ट का है 1/10, सेकंड वाले का 2/15। 2/15 सही है। Yes. हाँ दृष्टि सर दिखाओ। दोनों का ही 1/8 है ना? नहीं, एक का 1/10 है, दूसरे का 2/15। हाँ आकांक्ष ठीक है। पहले तो ये सारे नंबर्स लिख लेंगे। हाँ कबीर,
यस अध्ययन, क्या है आंसर बेटा? सर पहले का 1/10 और दूसरे का 2/15। ठीक है, ठीक है। कबीर तुम्हारा भी इतना कटकुट क्यों करते हो? साफ साफ लिखो। देखो सैंपल स्पेस है 11, 12, 13, 14 और अप टू 40। ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। अब फर्स्ट पार्ट में परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग 16 से स्टार्ट करते हैं, तो 16 हो गया, 25, 36, राइट। Card is drawn at random. Find the probability that the number on the card drawn is a perfect square. और टोटल नंबर कितने होंगे 40 से 11 में अगर तुम देखोगे, so this is 30 numbers, right? 11 से लेके 40 तक there are 30 total numbers. So probability of E1 will be equal to 3/30. That is 1/10. सेकेंड है डिविजिबल बाय 7, तो 7 से क्या क्या डिविजिबल हो जाएगा? 14, 21, 28, 35. So probability of E2 is 4/30, 2/. क्लियर बच्चों? Yes. नेक्स्ट वन, इसको ट्राई कीजिए।
6 है। लास्ट वाला क्या किया है तुमने? कितना बाय 16 लिखा हुआ? 11 by 16. नहीं नहीं 10 होगा बेटा। 10 आया है था। ना? फिर कहना है 6 है ना टोटल, तो 16 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 10 बचेगा, राइट? सो आपसे पहला पार्ट कह रहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज वॉवेल, तो देयर आर 4 वॉवेल्स E E I and O, राइट? सो आउट ऑफ 16 4 आर वॉवेल्स, तो 4/16 कर देंगे, 1/4 आ जाएगा। कॉन्सोनेंट्स जो रिमेनिंग 12 है वो कॉन्सोनेंट्स 12/16 करके वो हमारा 3/4 आ जाएगा। और नॉट which are not present in median, none of the letters of the word median में there are 6 letters and there are in total, and all of these 6 letters lie between A and P. So what we'll do not in median is 16 minus 6, that is 10/16, so that will give you 5/8. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes. 37th question क्या कह रहा है कि a box contains a certain number of balls, on each of 60% balls letter A is marked. ठीक है? So 60% में A लिखा हुआ है, on each of 30% letter B is marked, and on each of remaining balls मतलब 10% में C is marked. A ball is drawn from the box at random, find the probability that the ball drawn is marked C. तो देखो अगर टोटल 100 बॉल्स मान लेते हैं 1/10 है ना, हाँ 100 बॉल्स अगर हम लोग मान लेते हैं तो ए वाले 60% हो गए, मतलब 60 बॉल्स हो गए ए वाले, बी जो है 30% मतलब 30 बॉल्स हो गए बी लिखा हुआ, और 10% मतलब 10 बॉल्स हो गए सी लिखा हुआ। सो फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मार्क्ड सी इज 10/100 which is 1/10. Second, probability A or B, right? A or B means 60 plus 30/100. This is 9/10, right? Third, neither B nor C, तो फिर से A ही आ गया है ना, neither B nor C is probability of A, so this is 60/100, so 6/10 or 3/5. क्लियर है बच्चों? तुम्हारा जो होमवर्क है वो मैंने अपलोड भी किया हुआ है वहां पे हमारे लिए। 25C का फर्स्ट से 15th क्वेश्चन, 1 से लेके 15 तक करना। 25C का क्वेश्चन नंबर 1 to 15 करना है ना, ये तुम्हारा होमवर्क है। तुम लोग का भी क्या क्या चैप्टर का टेस्ट नहीं हुआ है? मेरे ख्याल से अभी 2 ही चैप्टर का टेस्ट हुआ है, कितने चैप्टर्स के टेस्ट हुए? हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स का टेस्ट नहीं लिया है ना तुम्हारा अभी? सर किसी का नहीं। किसी का नहीं हुआ? सर ले चुके हैं, आई थिंक शुरू वाले का ले चुके हैं। शुरू वाले लिए हैं यार, 2 टेस्ट लिए हैं, ऐसे लांछन मत लगाओ मेरे। चैप्टर्स विच आर रिमेनिंग टू टेक टेस्ट मेरे ख्याल से जीएसटी अभी जो हाल फिलहाल पढ़ाया 2-3-4 चैप्टर उसका नहीं लिया। तो सबसे पहले तो इसी से ये अपना आई विल स्टार्ट विद जस्ट पहले चैप्टर किया था ना हम लोगों ने, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का तुम्हारा टेस्ट लेंगे। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना, मंडे को टेस्ट लेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है? सर बट फिर ट्यूसडे को भी तो टेस्ट है ना फिजिक्स का। हाँ तो क्या हो गया? फिर दोनों के लिए पढ़ना पड़ेगा। ना ना, फिजिक्स को चूल्हे में डाल दो, बस मैथ्स पढ़ो। दोनों के लिए पढ़ना पड़ेगा और क्या। सर ठीक है। मैथ्स मंडे को है और वो ट्यूसडे को। तो ये स्कूल भी खुल रहा है ना मंडे को। कोई बात नहीं, स्कूल में ऐसे भी कुछ नहीं होता है। मंडे को मैथ्स का टेस्ट होगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। तुम्हारे कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है इसमें यूनिट यूटी में? मैथ्स में विच आर द चैप्टर्स विच आर कमिंग? साइकिल टेस्ट
हाँ जी, साइकिल टेस्ट। सर मंडे कौन सा है टेस्ट? मंडे को मैथ्स का बोल रहा था मैं, पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा साइकिल टेस्ट में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं मैथ्स में? So section formula, GST, banking और matrices. सेक्शन फॉर्मूला, जीएसटी, बैंकिंग और मैट्रिसेस। इसमें से मुझे लगता है बस सेक्शन फॉर्मूला का तुम्हारा टेस्ट हुआ है, बैंकिंग, जीएसटी और मैट्रिसेस का टेस्ट नहीं हुआ। तो पहले तो बैंकिंग का शायद कर चुके थे। बैंकिंग का हो चुका है, जीएसटी और मैट्रिसेस का तो नहीं हुआ है, ये पक्का है। तो तुम लोग क्या करो, मैट्रिसेस का तैयारी करो, मैट्रिसेस पहले करते हैं, ठीक है? तो मैट्रिसेस का तुम्हारा टेस्ट होगा मंडे को, सादे, ठीक है? मंडे यू विल Yes, हैव अ sir. टेस्ट ऑफ मैट्रिसेस, और Okay, sir. ट्यूसडे यू हैव अ टेस्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, Okay. यस, Okay, sir. फिजिक्स का। चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। Bye, sir. Thank you. Yes, sir.